Good morning students. Hope everyone is fit and fine. So today we are going to start with the chapter 8 that is more on emails. आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ईमेल्स के बारे में और डिटेल्स ऑफ मोर ईमेल्स के बारे में। तो पहले हम लोग देख लेते हैं, एक बार याद कर लेते हैं जो हमने लास्ट क्लासेस में पढ़े थे, व्हाट इज ईमेल एंड व्हाट वी कैन डू विद दोज emails. Emails क्या है? Email is known as electronic mail. E for electronic mail. Email stands for electronic mail. Email is an electronic network service that allow two or more users. Allow करते हैं दो और more users to communicate एक दूसरे के साथ बात करने में help करते हैं. That are sent and received messages through the computers. Send or receive होता है messages through with the help of computer. You can also send pictures. You can also send pictures and audio or video. Audio video send कर सकते हो through email. Email के through audio video हम लोग send कर सकते थे. It is one of the most useful feature. It is the one of the most useful feature of internet. Internet के most useful features में होता है, which help communicating to be the fast, reliable and accurate. Fast and reliable and accurate communication process माना जाता है. तो ऑब्वियसली जब हम लोग चिट्ठी भेजते थे तो चिट्ठी टेलीग्राम ये सब जाने में थोड़ा टाइम लगता था. चिट्ठी जाने में एक हफ्ता 2 हफ्ता लग जाता है, टेलीग्राम जाने में 24 घंटे मिनिमम लग ही जाता है. बट मेल में क्या होता है? इन मेल you can send within fraction of second. Okay. Now let us come up with the advantages of email. Email का advantages क्या क्या है? Given below the wonderful advantages of email. Email का advantages नीचे दिया हुआ है. Let us read and know what are the advantages. Email are easy to use. Email क्या है? Easy to use है. You can organize your daily communication. You can organize your daily communication and send, receive electronic message and save them on computer. तुम उसको एक डेली कम्युनिकेशन के हिसाब से यूज ऑर्गेनाइज कर सकते हो, उसमें सेंड कर सकते हो, रिसीव कर सकते हो और वो चीज कंप्यूटर में सेव करके भी रख सकते हो. ओके. नेक्स्ट, ईमेल are delivered at once around the world. दुनिया के हर एक कोई भी कोने में, हर एक जगह पे तुरंत मेल पहुंच जाता है. No other form of written communication is as fast as email. कोई भी written communication इससे भी जल्दी नहीं हो सकता. This email is the fastest. email do not use paper. email में कोई पेपर की जरूरत नहीं होता है. They are environment friendly. Obviously जब पेपर यूज नहीं हो रहा तो it becomes environment friendly and save lots of trees being cut down. और सेव कर देते lots of trees को cut down होने से. Okay. email can also include pictures. emails में हम लोग pictures include कर सकते हैं. You can send birthday cards भेज सकते हो, newsletter भेज सकते हो through email. Products can be advertised with email. Products का भी advertisement हम लोग कर सकते हैं with the help of email. Companies can reach a lot of people and inform them in a short time. Short time में companies के लोग बहुत जगह पे इसके बारे में बोल सकते हैं और हर एक इंसान के पास पहुंच सकते हैं. You have already learned to create email account in previous classes. email account कैसे बनाते हैं वो previous classes में तुम लोग जान चुके हो. बट अब इसमें हम लोग को जानना है ईमेल के बारे में और क्या क्या हम लोग जानकारी लेना बाकी है. तो पार्ट ऑफ ईमेल प्रोग्राम विंडो. पार्ट ऑफ ईमेल प्रोग्राम क्या है? ईमेल प्रोग्राम इज यूज्ड टू सेंड एंड रिसीव ईमेल. ईमेल जो प्रोग्राम है इसमें क्या करता है? सेंड और रिसीव ईमेल होता है. which is online email service such as online कोई सर्वर के हेल्प के थ्रू हम लोग ट्रांजैक्शन करते हैं, जैसे Gmail, Yahoo Mail, Hotmail. some of the common features of online, कुछ common features है इस email में that are inbox link, send mail link, draft link, compose link. This link help to open the inbox folder.
ये हेल्प करते हैं हम लोग को इनबॉक्स फोल्डर को ओपन करने में। देन यू कैन चेक द डिटेल्स ऑफ द मेल, जहां पे तुम डिटेल्स चेक कर सकते हो ऑफ द मेल। सेंड मेल लिंक, सेंड मेल लिंक, दिस लिंक स्टोर्स द मेल सेंड बाय यू टू द अदर ईमेल अकाउंट। ये जो है ईमेल अकाउंट में स्टोर्ड, लिंक इज स्टोर्ड the mail sent by you to the another email account। यहाँ पे sent mail link में क्या होता है, जो तुम मेल सेंड किए वो तुम्हारे पास भी स्टोर रहते हैं। ड्राफ्ट लिंक में क्या होता है, इट हेल्प्स टू सेव द ड्राफ्ट टू मॉडिफाई एंड सेंड लेटर। यहाँ पे तुम सेव करके, कुछ लिखने के बाद सेव करके रख दो, बाद में उसको मॉडिफाई करके तुम सेंडर जो है जिसके पास भेजना चाहते हो भेज सकते हो। मतलब पूरा एक बार में तुमको कंप्लीट करने की जरूरत है, थोड़ा थोड़ा करके लिख के भी तुम ड्राफ्ट में सेव कर सकते हो। Later you can send it to the link. Then compose. Compose, the link opens compose mail window where you can write email. Compose में हम लोग कहाँ, compose में क्या कर सकते हैं, हम लोग वहां पे लिख सकते हैं, we can write email. Now part of compose mail window. अब आता है part of compose mail window. Compose mail में क्या क्या पार्ट है और क्या क्या हो सकता है। Various compose mail, various part of the compose mail window are shown and described below। नीचे पिक्चर में देखोगे बुक में वहां पे दिया हुआ है and you can know what they are and what they are used for। Next, first is to in this box, इस to box में हम लोग क्या कर सकते हैं, you can add the address of the recipient who you want to send। यहाँ पे तुम्हारे जिसके पास लेटर तुम मेल भेजना चाहते हो उसका एड्रेस होना बहुत जरूरी है। टू पे जहां पे तुम जिसको मेल भेज रहे हो उसका एड्रेस तुम्हारे पास होना चाहिए, वहां पे लिखना है। एड सीसी लिंक, एड सीसी लिंक, सीसी इज शॉर्ट फॉर्म ऑफ कार्बन कॉपी, कार्बन कॉपी का शॉर्ट फॉर्म है। दिस लिंक अलाउ अ यूजर टू सेंड अ कॉपी ऑफ द टेक्स्ट टू द अनदर ईमेल एड्रेस। सीसी में क्या होता है, ये जो मेल हम लोग भेज रहे हैं इसका एक कॉपी वो दूसरे मेल आईडी पर भेज सकते हैं। एंड देन कम्स बीसीसी, बीसीसी लिंक। BCC is a short form of blind carbon copy. BCC is a short form of blind carbon copy. This link help you to enter email address. ये help करते हैं email address enter करने में to the people to whom you want to send as a blind carbon copy. Blind carbon copy मतलब जहाँ पे किसी को पता नहीं चलेगा बट तुम उसको कॉपी करके सेंड कर रहे हो। ओके, सब्जेक्ट यहाँ पे सब्जेक्ट में क्या होता है, जैसे हम लोग फॉर्मल लेटर में लिखते हो सब्जेक्ट, वैसे ही सब्जेक्ट किस टॉपिक में ये लेटर मेल तुम कर रहे हो, दैट इज द सब्जेक्ट। देन टेक्स्ट एरिया, जहां पे तुम बॉडी लिखते हो एक लेटर का, वो टेक्स्ट एरिया होता है जहां पे तुम ईमेल लिखते हो। नाउ कंपोजिंग एंड सेंडिंग ईमेल यूजिंग जीमेल। जीमेल यूज करते हैं, जीमेल इज नोन एज गूगल मेल। गूगल मेल यूज करके ईमेल कैसे हम लोग मेल कैसे सेंड कर सकते हैं। टू कंपोज एंड सेंड एन ईमेल परफॉर्म द फॉलोइंग स्टेप। हम लोग परफॉर्म करना पड़ेगा फॉलोइंग स्टेप्स। फर्स्ट, इंटरनेट एक्सप्लोरर ओपन करना है, वहां पे www.gmail.com ओपन करना है। उसके बाद वहां पे टाइप योर लॉगिन नेम एंड पासवर्ड, तुमको जो पासवर्ड दिए हो वो पासवर्ड और लॉगिन नेम क्लिक करना है। उसके बाद साइन इन क्लिक करना है, वहां पे देखोगे। उसके बाद कंपोज एक ऑप्शन बटन शो करेगा, बुक में फॉलो करते जाओगे तो दिखाई देगा। स्टेप 5 देखो कंपोज है, उसके ऊपर क्लिक करोगे तो तुम्हारे एक 6 वाला पेज ओपन हो जाएगा। स्टेप 6 ओपन हो जाएगा। वहां पे 2 में जहां पे मेल सेंड करना चाहते हो उसका एड्रेस लिखोगे, सब्जेक्ट में जो भी सब्जेक्ट देना चाहते हो वो सब्जेक्ट लिखोगे। उसके बाद टेक्स्ट एरिया पे टेक्स्ट डालोगे। उसके बाद सेंड बटन है, सेंड बटन पे क्लिक करोगे तो तुम्हारे मेल जो है वो सेंड हो जाएगा। तो दिस इज द सिंपल इजी स्टेप्स जो तुम लोग को दिमाग में रखना है। नेक्स्ट, अब इस मेल के साथ साथ अगर हम लोग कुछ अटैच करना चाहते हैं, हम लोग उस अटैच करके फिर सेंड करना चाहते हैं, फॉर दैट व्हाट वी हैव टू डू। फर्स्ट वी हैव टू गो टू द कंपोज विंडो। वहां पे 2 में एड्रेस देना है, किसको हम लोग सेंड करना है, सब्जेक्ट में जाके सब्जेक्ट देना है। उसके बाद देखोगे नीचे अटैच फाइल का लिखा रहता है, उसके ऊपर क्लिक करने से तुम्हारे एक फोल्डर ओपन हो जाएगा। जिस फोल्डर से तुमको जो भी फाइल चाहिए, जो भी फाइल अटैच करना चाहते हो उसको सिलेक्ट करके अटैच ऑप्शन है,
ओपन ऑप्शन है, ओपन ऑप्शन में क्लिक करोगे तो तुम्हारी फाइल जो है वो अटैच हो जाएगा। देन सेंड ऑप्शन, जैसे हम लोग नॉर्मली सेंड करते हैं वैसे सेंड कर दोगे। एंड दैट इज हाउ यू कैन सेंड अ फाइल थ्रू द हेल्प ऑफ ईमेल। देन रीडिंग एन ईमेल, ईमेल को रीड कैसे करना है, दिस आर द सिंपल्स, हम लोग सबको पता है कैसे करना है, फिर भी लेट अस रिवाइज वंस अगेन। ईमेल रीड करने के लिए फर्स्ट हम लोग को क्लिक करना है किसमें, इनबॉक्स लिंक में जाना है। इनबॉक्स लिंक में जाने के बाद तुम जो भी मेल क्लिक करना, वहां पे बहुत सारे मेल आएगा, उसमें से जो भी मेल लिंक तुमको क्लिक करना है, रीड करना चाहते हो, क्लिक ऑन दैट मेल। आप उसमें क्लिक कर दोगे तो मेल ओपन हो जाएगा और तुम सारे मेल रीड कर सकते हो। देन यू कैन रीड द मेल विच यू वांट टू रीड। नेक्स्ट, अब तुमको कोई मेल का रिप्लाई करना है, उसी मेल पढ़ने के बाद तुमको उसको रिप्लाई करना है। तो फॉर दैट व्हाट यू हैव टू डू, मेल को जो ओपन किया उसको ओपन कर, नीचे देखोगे रिप्लाई ऑप्शन है, रिप्लाई का ऑप्शन है, उस रिप्लाई ऑप्शन लिंक में जाके क्लिक करना है। फिर एक कंपोज का जो है वहां पे 2 में पहले से वो ईमेल एड्रेस रहेगा, तुमको नहीं देना, क्योंकि तुम रिप्लाई कर रहे हो, उसको पता है तुमको किसको भेजना है, तो वहां पे 2 के जगह पे जिसको भेजना है उसके नाम आ जाएगा। देन सब्जेक्ट में जो भी तुमको देना है सब्जेक्ट, फिर टेक्स्ट एरिया पे जो भी लिखना है लिख के सेंड बटन दबाओगे तो मेल जो है वो उनके पास रिप्लाई के थ्रू सेंड हो जाएगा। अब आता है कोई भी मेल अगर तुमको डिलीट करना है, इफ यू वांट टू डिलीट एनी मेल, अगर तुमको कोई मेल डिलीट करना है, फॉर दैट ओपन इनबॉक्स, पहले इनबॉक्स ओपन करो। अब चेक द सिलेक्टेड मेल, अब तुमको सिलेक्ट करना है, देखोगे एक एरो ऑप्शन है, साइड में टिक करने का ऑप्शन है, वहां पर टिक करते जाओ जो जो मेल तुमको डिलीट करना है। उसके बाद डिलीट ऑप्शन आएगा या बिन, रिसाइकल बिन का जो बिन, डस्टबिन का बिन जो है वो बिन सिंबल आएगा ऊपर में, उसके ऊपर क्लिक करोगे तुम्हारे मेल जो जो तुम सिलेक्ट किए हो वो सारे डिलीट हो जाएगा। ओके, दिस इज हाउ यू कैन डिलीट अ मेल। सो दिस इज एंड ऑफ दिस चैप्टर। You have to read this chapter carefully. इस चैप्टर को केयरफुली रीड करना है, एक्टिविटी टाइम को सॉल्व करना है, ओके। एंड यू हैव टू फर्स्ट रीड द चैप्टर। इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन, कोई भी चीज समझ में नहीं आ रहा है तो मुझसे पूछोगे, ठीक है। टिल देन बाय एंड हैव अ ग्रेट डे।